Okay, what is mean by load balancer? Distribution of load sequentially. Correct. Second one, health check of Monitor server. system health. Correct. Recording started. Yes. Okay. तो देखो, अगर से आपको किसी ने भी पूछा व्हाट इज मीन बाय लोड बैलेंसर, तो उसका आंसर क्या रहेगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट द लोड। देन सेकंड वन, चेक हेल्थ ऑफ सर्वर। ओके, वो क्या करता है? सर्वर की हेल्थ चेक भी करता है। करेक्ट। नाउ वी नीड टू गो टू AWS कंसोल। AWS में हमें कहा जाना है? EC2 सर्विस में नीचे आपको दिखेगा लोड बैलेंसर। ओके, लोड बैलेंसर, टारगेट ग्रुप, ट्रस्ट ग्रुप। ओके, सो हमें क्या करना है? क्लिक ऑन लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर पर क्लिक किया हमने। क्रिएट लोड बैलेंसर। आप यहाँ पर देख सकते हो देर आर 4 टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर। ओके, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर एंड क्लासिक लोड बैलेंसर। करेक्ट। तो what is the difference between application, network and classic? So many difference, we just see number of servers. Okay, so many difference, so you can check on Google also. Okay, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि what is the difference between learn more, click on learn more, so you can open that page. Okay, so this is the product load balancer, target application load balancer, gateway load balancer and classic load balancer. Here they have provided target IP, IP status lambda. So they have provided all these means difference between. Okay, so here, so you can go through this documents or you can search on Google also. So you'll be understand what is mean by application load balancer, network load balancer, gateway load balancer and classic load balancer. Okay, so now recently you every company using application load balancer. Okay, and network load balancer, suppose any network related work, so they are using network load balancer. Gateway load balancer, they are using gateway load balancer. Okay, तो हम देखने वाले इसका डिफरेंस देखने वाले many differences. Let me go to here. This is application load balancer. यहाँ पर आपको info भी दिख जाएंगी। देखो how application load balancer works. Client makes request to, देखो अब everywhere means इसका काम जो है, जो वर्क है, वर्क फ्लो इज सेम। ओके, जस्ट दे हैव यूज सम कंपोनेंट्स। तो यहाँ HTTPS यूज किया, TCP UDP TLS यूज किया। मीन्स यहाँ पर सिक्योरिटी ज्यादा प्रोवाइड की, यहाँ पर सिक्योरिटी थोड़ी सी कम है। ओके, देन गेटवे लोड बैलेंसर ऑल्सो दे हैव प्रोवाइडेड सम अदर। So there they have provided some gateway load balancer. Okay, so they have provided better security here and classic load balancer. Okay, this is the classic load balancer. This is the simple load balancer. Here HTTP, TCP, SSL both are used. Okay, so nowadays company using application load balancer. Okay, before a few months or before 1 year, so they have means stop support for classic load balancer. AWS did not support for classic load balancer. Okay, तो ये क्या बोल रहा है? load balancer is it to an existing running is it to classic network. Okay, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको इन्फो दिख रहा है क्लासिक लोड बैलेंसर से क्लाइंट मेक्स द रिक्वेस्ट टू योर एप्लीकेशन। ओके, सो एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट कर रहा है, द लिसनर in your load balancer receives the request matching the protocol and port that you configure. Correct. So after that, the receiving listener evaluate the incoming request against the rule you specify and if applicable route the request, okay, to the appropriate target group. So you can use an HTTPS listener to
offload the network of TLS encryption and decryptions to your load balancer. Okay, TLS means क्या है? ये एक मीन्स सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करता है. ओके, सिक्योरिटी लेयर्स मीन्स जो हमारा यहाँ पर देखो, दिस इज अवर, ये सर्टिफिकेट है. किसका सर्टिफिकेट है? ये सर्टिफिकेट इज वैलिड. ये किसका सर्टिफिकेट है? AWS के इसका HTTP के लिए इन्होंने सर्टिफिकेट यूज किया. हु इज प्रोवाइडेड दैट सर्टिफिकेट? दिस इज आल्सो TLS सर्टिफिकेट. ओके, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोवाइड करता है. ओके, सो मीन्स समवन, अगर से कोई हैकर या समवन log in on that AWS account, so that TLS certificate restricted that person. Okay, so क्योंकि उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है. जो एक एम्प्लॉय यहाँ पर लॉग इन कर रहा है, सपोज आप कंपनी में वर्क कर रहे हो और आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पर काम करना है, तो दे हैव प्रोवाइडेड, मीन्स आपको AWS पर काम करना है, AWS का अकाउंट दिया है आपको, तो दे हैव प्रोवाइडेड सम सर्टिफिकेट्स ऑल्सो एवरीथिंग. जब तक आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं डालोगे, तब तक वो लॉगिन नहीं देंगे आपको. करेक्ट? तो दे हैव प्रोवाइडेड सम सिक्योरिटी. तो हेल्थी टारगेट इज वन और मोर टारगेट ग्रुप रिसीव ट्रैफिक. जो हेल्थ है, हेल्थ चेक करता है सर्वर की, सेम लाइक एज हियर आल्सो. ओके, सो हाउ टू चेक दैट हेल्थ, सो वी विल सी. सॉरी. देन आता है नेटवर्क लोड बैलेंसर. ओके, तो नेटवर्क लोड बैलेंसर, क्लाइंट मेक्स रिक्वेस्ट फॉर द एप्लीकेशन. यहाँ पर चेंजेस क्या है? द लोड बैलेंसर रिसीव्स द रिक्वेस्ट आइदर डायरेक्टली और थ्रू एन एंड पॉइंट फॉर प्राइवेट कनेक्टिंग वाया AWS प्राइवेट लिंक. ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यूजर आ रहा है, तो यूजर डायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकता है इधर से इस लोड बैलेंसर को, या फिर वाया कौन से प्राइवेट कनेक्टेड मीन्स VPC से कनेक्ट होगा. ओके, तो via AWS private link. Okay, so यहाँ पर डिफरेंस क्या है? The listener in your load balancer receives the request matching the protocol and port that you configure. Okay, तो ये क्या कर रहा है कि जो पोर्ट हमने कॉन्फ़िगर किया है उसको क्या कर रहा है? मैच कर रहा है उस पोर्ट को, प्रोटोकॉल को. ओके, देन ही विल लॉग इन हियर, मीन्स इस सर्वर पे, या फिर जो भी हमारा लोड बैलेंस है उस पर आ रहा है. ओके, सो देर इज डिफरेंस. देन हियर गेटवे लोड बैलेंसर, द लोड बैलेंसर रिसीव्स द रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन राउट टेबल. ओके, राउट टेबल बेस्ड ऑन क्या हो रही, रिक्वेस्ट हमें रिसीव हो रही. ओके, so route table configure that are set within your VPC, internet gateway and transit gateway. Okay, so हमने देखा कि इंटरनेट गेटवे रहेगा. इंटरनेट गेटवे रहता है स्टार्ट में, उससे कनेक्ट क्या रहता है? राउट टेबल. और राउट टेबल किससे कनेक्ट रहता है? सबनेट से. करेक्ट? तो सेम लाइक एज हियर आल्सो, द लोड बैलेंसर रिसीव द रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन राउट टेबल. ओके, जो राउट टेबल हम यूज करें उसके बेस पर क्या करेंगे? वो रिक्वेस्ट रिसीव करेंगे. ओके, और राउट टेबल कॉन्फ़िगरेशन दैट आर सेट विद इन योर VPC. और हम कहाँ पर करते हैं? VPC में राउट टेबल क्रिएट करते हैं. करेक्ट? कॉन्फ़िगरेशन VPC में रहता है. सो इंटरनेट गेटवे एंड ट्रांजिट द गेटवे. सो इस तरह से रिक्वेस्ट सेंड होती है. ओके, और क्लासिक लोड बैलेंसर में क्या होता है? द लिसनर इन योर लोड बैलेंसर रिसीव द रिक्वेस्ट मैचिंग देयर प्रोटोकॉल एंड पोर्ट. जैसा हम प्रोटोकॉल क्रिएट करेंगे, प्रोटोकॉल मीन्स एज वन टाइप ऑफ रूल, जैसा हम रूल क्रिएट करेंगे उस पोर्ट के लिए, रूल और पोर्ट के हिसाब से वो क्या होंगी? रिक्वेस्ट सर्व होंगी. ओके, रिक्वेस्ट रिसीव होंगी. ओके, देन रिसीविंग listener evaluate the incoming request against the rule you specify, and if capable route the request to the appropriate target group. You can use as HTTPS listener to offer to work of TLS encryption and decryptions to your load balancer. Okay, so you can use an HTTPS. हम क्या कर रहे हैं? HTTP और HTTPS यूज कर रहे हैं यहाँ पर एज ए लिसनर. ओके, टू ऑफलोड द वर्क ऑफ TLS इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. वो कैसे ऑफलोड वर्क कर रहा है? TLS के तरीका. ओके, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है. जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट को क्या कर रहा है? इंक्रिप्ट कर रहा है यहाँ तक आने के लिए, और इसको क्या कर रहा है? फिर डिक्रिप्ट कर रहा है लोड बैलेंसर में जाने के बाद. ओके, देन हियर आल्सो
Here the listener is the load balancer receive the request matching protocol and port. यहाँ पर जो यूज हो रहा था तो यहाँ पर वो यूज हो रहा है. ओके, सो इसने देखो वन टाइप ऑफ जो नेटवर्क लोड बैलेंसर है उसने वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड किए. उसके बाद में जो हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की जो फर्स्ट स्टेज थी वो यहाँ पर क्या बन गई, सेकंड स्टेज बन गई. अंडरस्टैंड? देन गेटवे लोड बैलेंसर, द लोड बैलेंसर राउट रिक्वेस्ट टू ए टारगेट ग्रुप. ये क्या कर रहा है, टारगेट ग्रुप पर कहाँ से, वीपीसी से आ रही है, राउट टेबल से रिक्वेस्ट आ रही है. ओके, और राउट टेबल कहाँ है, हमारे वीपीसी में है. मीन्स हमारा प्रोटोकॉल कौन सा लगेगा, रूल किससे लगेंगे, वीपीसी के रूल्स लगेंगे. करेक्ट. द लोड बैलेंसर राउट रिक्वेस्ट टारगेट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ए स्केलेबल फ्लीट of applications, for example firewall, deep packet inspection systems, URL filtering systems. सो यहाँ पर उससे ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की है. करेक्ट. और वर्चुअल एप्लीकेशन एंड ट्रैफिक फॉरवर्ड बैक टू द लोड बैलेंसर एंड ड्रॉप द ट्रैफिक based on its configurations. Okay, this type of load balancer acts as a pump in the wire between the source and destinations. Okay, then here, so healthy target is one or more target group. यहाँ टारगेट ग्रुप बना है. रिसीव द ट्रैफिक बेस्ड ऑन लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम, जो लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं. ओके, सो एंड राउटिंग रूल स्पेसिफाई द लिस्टनर. Okay, which is the load balancer forwarded the traffic to the destination. So virtual appliances process the traffic and forward it back to the load balancer and route the traffic based on its configuration. This type of load balancer acts as an buffering wire. Okay. के बाद में इसका इन्फो देखो. The healthy instance receive the traffic. You can register, deregister instance. Okay. Register instance और deregister हम देखेंगे कैसे करते हैं. To your load balancer either manually or by way on auto scaling group without disrupting the overall flow request for your applications. Okay, this is the classic load balancer. तो इसमें से हम कौन सा load balancer देखने वाले हैं. Application is mostly now used. Okay, so network load balancer also use. Gateway load balancer some company use, some security अगर से उनको टाइट सिक्योरिटी चाहिए तो जैसे बैंकिंग प्रोजेक्ट है, दे आर यूजिंग गेटवे लोड बैलेंसर. ओके, और क्लासिक लोड बैलेंसर अभी कोई यूज नहीं करता है, बट सम कंपनी आर यूजिंग. बट आपको इंटरव्यू में क्या बताना है कि हम कौन सा लोड बैलेंसर यूज करते हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर. ओके, तो वर्किंग इज सेम, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एंड क्लासिक लोड बैलेंसर वर्किंग इज सेम, जस्ट दे हैव एडेड वन फीचर्स हियर. ओके, तो यहाँ पर वाई वी आर यूजिंग क्लासिक लोड बैलेंसर, बिकॉज दिस इज द फ्री. ओके, अगर से आपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज किया तो दे विल चार्ज. ओके, नेटवर्क लोड बैलेंसर किया इससे ज्यादा चार्ज आएंगे. और गेटवे लोड बैलेंसर आया, गेटवे लोड बैलेंसर यूज यूज किया, दे विल चार्ज यू. ओके, सो अभी हम कौन सा लोड बैलेंसर यूज कर रहे हैं एज पर प्रैक्टिस. देखो लोड बैलेंसर, आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट फॉर दिस लोड बैलेंसर, हाउ टू क्रिएट द लोड बैलेंसर. You can check and you can do live session also. Okay, तो हमें प्रैक्टिस के लिए कौन सा यूज करना है, क्लासिक लोड बैलेंस, बिकॉज दे डिड नॉट चार्ज दैट क्लासिक लोड बैलेंस. एडब्ल्यूएस इसके लिए चार्ज नहीं करेंगे, हमें फ्री में यूज करना पड़ेगा. ओके, फ्री में यूज कर सकते हैं, तो वी विल यूज फ्री. ओके, सो क्रिएट लोड बैलेंसर. नाउ क्रिएट लोड बैलेंसर, यहाँ क्या दिख रहा है, the classic load balancer distributed incoming application traffic across multiple EC2 instance target in multiple availability zone. Okay, so multiple availability zone में से हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेंस यहाँ पर अटैच कर सकते हैं. ओके, मीन्स ट्रैफिक ट्रांसफर कर सकते हैं उस पर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. दिस इंक्रीज द फॉल्ट टॉलरेंस ऑफ एप्लीकेशन. इलास्टिक लोड बैलेंसिंग डिटेक्ट्स अनहेल्दी इंस्टेंस एंड राउट द ट्रैफिक ओनली हेल्थी इंस्टेंस. तो क्या करेंगे आप,
increase the fault tolerance of applications. Okay, elastic load balancing defect अनहेल्दी अनहेल्दी इंस्टेंस होगा तो उसको क्या करेगा, उसका ट्रैफिक किसको राउट करेगा, हेल्दी इंस्टेंस को, करेक्ट। तो अभी हम डिफरेंस देखने वाले हैं, एक डिफरेंस देखने वाले हैं, वी विल सी दैट डिफरेंस। So, Yes, can so you explain the gateway load balancer once again? wait 1 minute। आप डिफरेंस देख सकते हो, उसमें कुछ नहीं है, डिफरेंस है, यू कैन गो थ्रू दैट डिफरेंस सो विल बी अंडरस्टैंड। ओके Okay, sir. And sir, in the network load balancer, you said that we can connect it through VPC. So, on VPC, you mean an instance in the VPC and then connect to the other. क्रिएट लोड बैलेंसर। सो नाउ प्लीज आस्क नाउ। देखो Yes, इसकी VPC. रिक्वेस्ट क्या जा रही है, एक तो वीपीसी से आ रही है, वीपीसी मींस पहले वीपीसी पर रिक्वेस्ट आएंगी, वीपीसी के इनसाइड रिक्वेस्ट आ रही है। ओके, वीपीसी मींस प्राइवेट नेटवर्क एरिया। ओके, रिक्वेस्ट कहाँ पर आएंगी, पहले प्राइवेट नेटवर्क पे आएंगी, उसके बाद में हम रिक्वेस्ट रिसीव करेंगे, करेक्ट। Private network, by private network, you mean an instance running in that private network. प्राइवेट नेटवर्क मींस, देखो प्राइवेट नेटवर्क मींस जब हम वीपीसी, खुद का वीपीसी क्रिएट करेंगे, खुद का प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करेंगे, और उसमें जितना भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करेंगे। मीन्स हम हमारे रूल लगा के हम वीपीसी क्रिएट करेंगे, जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस हम असाइन करेंगे उसको। और फिर वो आईपी एड्रेस से ये नेटवर्क लोड बैलेंसर को रिक्वेस्ट देंगे, राइट। तो फर्स्ट लर्न दिस वन। ओके, तो ये आप पहले लोड बैलेंसर देख लो, देन नेक्स्ट टॉपिक फॉर वीपीसी। ओके, सो यू कैन क्वेश्चन आस्क ऑन वीपीसी, बिकॉज क्या होता है कि I know you have curiosity everything, but some peoples are confused. Okay, जिनको कुछ भी पता नहीं है तो उनको समझ में नहीं आता what is going on. Okay, तो अभी एक काम करना कि जब अपना ये सेशन खत्म हो जाएगा ना, सेशन लास्ट में आपको जो भी पूछना है यू कैन आस्क मी। ओके, रिगार्डिंग वीपीसी, रिगार्डिंग गेटवे, जिनको सुनना है वो सुनेगा, जिनको नहीं सुनना है दे विल ड्रॉप ऑन। ओके, ओके सर। इस क्या होगा कि इससे बाकी के लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो हियर वी आर यूजिंग क्लासिक लोड बैलेंस, तो हमें क्या डिफरेंस देखना है। ओके, तो वी विल सी डिफरेंस नाउ। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, तो हमें करना है क्लासिक लोड बैलेंसर। सबसे पहला लोड बैलेंसर कैसा था, क्लासिक था, क्लासिक लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर।
network load balancer. Okay. और इनको क्या देखेंगे हम एज ए सर्वर. ओके. सो देखो, क्लासिक लोड बैलेंसर में nowadays इस classic load balancer में we are using only 100 servers. okay, less than 100 servers. तो classic load balancer आपने घर से लगाया तो आप कितने सर्वर यूज कर सकते थे? ओनली लेस देन 100 सर्वर्स. ओके. अगर से आपका एप्लीकेशन 100 सर्वर के नीचे है यू कैन यूज क्लासिक लोड बैलेंसर. ओके. अगर से आपका एप्लीकेशंस आर यूजिंग, आप उसमें 10 सर्वर से 10 to 1000 सर्वर्स, सॉरी 100 to 1000 सर्वर, 100 to 1000 सर्वर आप यूज कर रहे हो यू कैन यूज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर. ओके. देन मोर देन, तो मोर देन 1000 सर्वर्स होंगे यू कैन यूज कौन सा लोड बैलेंसर यूज करना है हमें? नेटवर्क लोड बैलेंसर. ओके. तो देखो, अगर से आपका एप्लीकेशन 100 सर्वर के इनसाइड है, मीन्स आपके एप्लीकेशन में ओनली 99 सर्वर्स है, यू कैन यूज क्लासिक लोड बैलेंसर. मोर देन 100 सर्वर्स to 1000 servers you can use application load balancer, but every company now using application load balancer. Okay. And network load balancer, so you can use more than 1000 servers. More than 1000 servers. अगर से आप एप्लीकेशन में मोर देन 1000 सर्वर्स यूज कर रहे हैं तो नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज कर सकते हैं. ओके. AWS did not provide documentation where mention these numbers, but people follow these numbers. Okay. So जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉलो दिस नंबर, बट AWS ने ऐसा कुछ कहाँ कॉन्फ़िगर नहीं किया है कि यू कैन यूज 100 सर्वर्स, बिलो 100 सर्वर्स क्लासिक लोड बैलेंसर, more than 100 server use, up to more than 100 server to 1000 servers you can use application load balancer, and more than 1000 servers you can use network load balancer. Okay. So ये कॉन्सेप्ट AWS के डॉक्यूमेंटेशन पर नहीं लिखा है, बट एवरी architecture levels people they are using these configurations. Okay. But nowadays classic load balancer is no one use, everyone use application load balancer and network load balancer. So most of the company use application load balancer. Okay. So we will select classic load balancer. Okay. So now we need to choose classic load balancer, create. तो यहाँ पर देखो, दिस लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट द इनकमिंग एप्लीकेशन ट्रैफिक अक्रॉस द मल्टीपल EC2 इंस्टेंस. मल्टीपल EC2 इंस्टेंस मींस वी हैव ऑलरेडी सीन हियर कि कल हमने देखा था कि कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड. सो जितने उसके पास सर्वर होंगे इक्वली क्या कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. ओके. इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोड. ओके. तो नाउ विल चेक, यहाँ पर हम लोड बैलेंसर का नाम देने वाले हैं. व्हाट इज, तो वट एवर यू वॉन्ट टू नेम, मीन्स आपको जो नाम देना है आप दे सकते हो. तो मैं यहाँ पर देता हूँ माई लोड बैलेंसर. ओके. माई LB या माई लोड बैलेंसर, यू कैन गिव वट एवर यू वॉन्ट. ओके. तो लोड बैलेंसर हमने नाम दे दिया. देन हियर स्कीमा, so हम कैन नॉट बी चेंज आफ्टर द लोड बैलेंसर इज क्रिएटेड. अगर से लोड बैलेंसर क्रिएट हो गया तो हम उसका स्कीमा चेंज नहीं कर सकते. ओके. सो हमें क्या करना है, इंटरनल फेसिंग और sorry, internet facing and internal. Okay. So server internal facing traffic
has public IP, DNS name is publicly resolved, require a public subnet. यहाँ पर क्या है, इंटरनल होना है. इंटरनल मीन्स इनसाइड. देखो क्या रहता है कि एक कंपनी का नेटवर्क रहता है. ओके, दिस इज द एक कंपनी है, सपोज दिस इज इंफोसिस. इंफोसिस का क्या रहेगा, खुद का एक नेटवर्क रहेगा. ओके, खुद का एक नेटवर्क रहेगा और दे आर यूजिंग दैट नेटवर्क. जो भी उनका एप्लीकेशन बनाना है, मीन्स सपोज तो ये क्या करेंगे, सपोज दिस इज द इंफोसिस कंपनी, उनका एक खुद का प्राइवेट नेटवर्क है. ओके, सो प्राइवेट नेटवर्क के लिए वो प्राइवेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे और इनसाइड इन दिस नेटवर्क्स एवरीवन कैन यूजिंग दिस लोड बैलेंसर. ओके, एवरीवन कैन यूजिंग दिस लोड बैलेंसर. बट हमें क्या चाहिए, हमें आउटसाइड जो पीपल है, जो आउटसाइडर पीपल है, ओके, जो एचटीटीपीएस से लॉगिन करना चाहिए, उसका हमें यूज करना है. इसके लिए क्या करेंगे, इंटरनल फेसिंग सर्वर, इंटरनेट फेसिंग ट्रैफिक मीन्स हम उसमें क्या करने वाले, एच टी टी पी और एच टी पी एस पोर्ट यूज करने वाले. दैट्स वाई वी नीड टू चूज इंटरनेट फेसिंग. ओके, नेटवर्क मैपिंग. सो यहाँ पर अगर से आपने वीपीसी क्रिएट किया है खुद का, तो वीपीसी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा. ओके, यहाँ पर अवेलेबिलिटी जोन दिया है, सो यू कैन सिलेक्ट वॉट एवर यू वांट. so here I think that availability zone is creating error. Okay, so we will switch to this Mumbai location. नॉर्थ वर्जीनिया के जो सी डी ई जो अवेलेबिलिटी जोन है, वो क्या करता है, एरर थ्रो करता है. ओके, नेटवर्क एरर दे आर थ्रोइंग, सो वी आर यूजिंग मुंबई रीजन्स. ओके, everyone can able to see now how classic sir. load balancer works. Yes. Okay, so यहाँ पर दिया है, यहाँ पर उसका डेफिनेशन दिया है कैसे वर्क कर रहा है. सो यू कैन गो थ्रू दैट दिस डॉक्यूमेंट्स. ओके, सो यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट दिया, हाउ टू वर्क ऑन दैट. एवरी लोड बैलेंसर, अगर से आप कौन सा भी लोड बैलेंसर क्रिएट करोगे, तो यू कैन, दे विल प्रोवाइड यू ऑल दिस इंफॉर्मेशन. ओके, सो यहाँ पर हाउ टू वर्क द एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यहाँ पर दिया है. ये आपको 4 पॉइंट पढ़ना है, हाउ टू लोड क्रिएट द लोड बैलेंसर, एवरी लोड बैलेंसर. ओके, अगर से आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा हाउ टू वर्क लोड balancer application network, so you can go through this theoretical part, only 4 lines. Okay, 4 points they have provided. So आपको ये रीड करना है, इसका डिफरेंस देखना है. so डिफरेंस पूछा जाता है आपको. ओके, what is mean by application load balancer, network load balancer, gateway load balancer and classic load balancer. You can go through these 4 points, so you will be understand. Okay, हाई लोड बैलेंसर, इंटरनल फेसिंग, बीपीसी में वही रखना है. मैपिंग हमें तीनों भी अवेलेबिलिटी जोन में करना है. मींस जब भी हम सर्वर क्रिएट करेंगे, ओके, सर्वर जब भी हम क्रिएट करेंगे, तो ये अवेलेबिलिटी जोन है. ओके, एपी साउथ 1, एपी साउथ 1 बी, एपी साउथ 1 सी. सो ये क्या होता है अवेलेबिलिटी जोन, वी विल सी. सबनेट प्रोवाइड करते, इसमें क्या करेंगे, दिस इज द आईपी एड्रेस रेंज फॉर दिस सबनेट. एक कैसा आईपी एड्रेस रेंज होता है, वी विल सी इन नेटवर्क पार्ट. ओके, तो ये 20 मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये आईपी एड्रेस कैसे असाइन होता है, वी विल सी. सो अभी हमें जब भी हम मीन्स इन लोड बैलेंसर जो भी सर्वर क्रिएट करेगा, तीनों अवेलेबिलिटी जोन में वो सर्वर क्रिएट कर सकता है. ओके, सो ऐसा नहीं कि मीन्स 1 ए में क्रिएट करेगा, 1 बी में, 1 सी में, तो किसी में भी अगर से 3 सर्वर आप लोड बैलेंसर को अटैच करें, 1 1 1. ओके, अगर से 6 कर रहे हैं तो 2 इसमें करेगा, 3 इसमें करेगा, 1 इसमें करेगा, ऐसा कुछ तो भी वो एडजस्टमेंट करेंगे. ओके, एज पर अवेलेबिलिटी. तो बिफोर लोड बैलेंसर, तो बिफोर लोड बैलेंसर कैसे काम होता था, देखो लोड बैलेंसर में तब भी वेब सर्वर चलते थे, वेब एप्लीकेशन चलते थे बिफोर लोड बैलेंसर. लोड बैलेंसर इंट्रोड्यूस बाय एडब्ल्यूएस. एडब्ल्यूएस कब आया, 2005 या 2010 के इन बिटवीन आया है. ओके, एडब्ल्यूएस इन मार्केट.
So before that also application is running, correct? Before that also applications running. How to work that applications? So पहले क्या होता था, before load balancer, okay, before load balancer यहाँ पर क्या रहता था, दिस इज आवर लोड बैलेंसर, ओके। यहाँ पर क्या रहता था, एक सिक्योरिटी ग्रुप रहता था। यहाँ पर क्या रहता था, एक सिक्योरिटी ग्रुप रहता था, ओके। ये सिक्योरिटी ग्रुप क्या करता था, कौन सी भी रिक्वेस्ट आती थी, रिक्वेस्ट कैसे आती थी, रिक्वेस्ट आती थी वाया सिक्योरिटी ग्रुप, ओके। सो कस्टमर एक्सेस दिस लाइक, तो दे आर एक्सेसिंग टू सिक्योरिटी ग्रुप, ओके। सिक्योरिटी ग्रुप में हम क्या करते हैं, क्या ओपन रहता है हमारा सिक्योरिटी ग्रुप में, वी विल ओपन दी पोर्ट्स, ओके। सिक्योरिटी ग्रुप में क्या ओपन करते हैं हम, पोर्ट्स ओपन करते हैं। तो कौन से दो पोर्ट है हमारे, HTTP और HTTPS पोर्ट हम यूज करते हैं, ओके। सपोज दिस इज द पोर्ट 1 HTTPS, ओके। सिक्योरिटी ग्रुप क्या करता मीन्स बिफोर लोड बैलेंसर कस्टमर एक्सेसिंग दिस स्ट्रक्चर, ओके। सो यहाँ से क्या आता था, कस्टमर एक्सेस करता था सिक्योरिटी वाया सिक्योरिटी ग्रुप, ओके। और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, इंफॉर्मेशन यहाँ से first log into this admin and then I have to refresh it. तो And देखो लोड बैलेंसर क्या करता था कि इस जो ये पोर्ट्स है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या करता था, पोर्ट्स ओपन करता था, ओके, फॉर लोड बैलेंसर। देन कस्टमर एक्सेसिंग दिस पोर्ट्स, उस पोर्ट्स के इनसाइड पोर्ट से इनसाइड आते थे। यहाँ पर उनका जो भी डेटा रहता था, डेटा जो भी लोड करते थे, लोड करने के बाद यहाँ से उनको आउटपुट मिलता था, ओके। सो कस्टमर एक्सेसिंग दिस लाइक दे एक्सेस टू सिक्योरिटी ग्रुप फर्स्ट, वो सिक्योरिटी ग्रुप को एक्सेस करते थे, ओके। एंड रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर, वो रिक्वेस्ट करते थे वेब सर्वर को फॉर लोड द पेज एंड रिक्वेस्ट गो बैक टू और रिस्पॉन्स, ओके। सो उनको उसकी इसमें क्या मिलता था, आउटपुट मिलता था, रिस्पॉन्स मिलता था। देन यूजर सी वेब कंटेंट्स, ओके, दैट थिंग यूज बाय अर्लियर, अर्लियर ऐसे यूज होता था, ओके। तो अर्लियर कैसे यूज होता था, दिस इज द पोर्ट, ये एक पोर्ट रहता था, एक पोर्ट ओपन किया जाता था लोड बैलेंसर पे। पोर्ट कौन ओपन करता है, पोर्ट कौन ओपन करता है, सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप में हम पोर्ट ओपन करते हैं, तो सिक्योरिटी ग्रुप थे पहले। तो सिक्योरिटी ग्रुप में क्या करते थे, यूजर आता था, यूजर एक्सेसिंग दिस लोड बैलेंसर बाय यूजिंग सिक्योरिटी ग्रुप, ओके। रिक्वेस्ट सेंड करता था, यहाँ पर जो भी डेटा लोड करना है डेटा लोड करता था, और रिस्पॉन्स उसको मिलता था, ओके, बाय यूजिंग पोर्ट। मीन्स क्या है, हमारा पोर्ट कौन मैनेज करता है, सिक्योरिटी ग्रुप, करेक्ट। तो कस्टमर रिक्वेस्ट गोइंग थ्रू कॉल्ड एज पोर्ट, कौन से पोर्ट थे, HTTP पोर्ट्स, HTTPS पोर्ट। बट नाउ वी आर नॉट गिविंग डायरेक्टली एक्सेस टू वेब सर्वर, ओके। अभी क्या हो रहा है, अभी हम डायरेक्टली एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं, वी विल क्रिएट वन लोड बैलेंसर। अभी हम लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे हैं, ओके। लोड बैलेंसर क्रिएट करके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सर्वर, यहाँ पर क्या है, हमारा सर्वर है, ओके। दिस इज द वेब सर्वर 1, दिस इज वेब सर्वर 2, ओके। और रिक्वेस्ट कैसी आ रही है, देखो, दिस इज आवर लोड बैलेंसर, दिस इज आवर लोड बैलेंसर, ओके। दिस इज वेब सर्वर 1, वेब सर्वर 1, वेब सर्वर 2। So now we are not giving direct access to web servers, we are attaching load balancer। हम क्या कर रहे हैं, किसको अटैच कर रहे हैं, लोड बैलेंसर को वेब सर्वर अटैच कर रहे हैं, ओके। तो
we are attaching load balancer. Now actually what happens, customer accessing load balancer, customer क्या कर रहा है, this is our customer, okay, this is our customer, इस ये क्या हमारा यूजर है, this is our user, okay, so user accessing फर्स्ट लोड बैलेंसर, वो किसको एक्सेस कर रहा है, लोड बैलेंसर को एक्सेस कर रहा है, लोड बैलेंसर यहाँ से एक्सेस करेगा, ओके, एक्सेस करने के बाद ये रिक्वेस्ट, तो यहाँ से रिक्वेस्ट आएंगी लोड वेब सर्वर पे, ओके, तो दिस रिक्वेस्ट कमिंग इन लोड बैलेंस वेब सर्वर, यहाँ से वो डेटा उठाएगा और ये रिक्वेस्ट ऐसी उसको रिस्पॉन्स मिलेगा यूजर को, करेक्ट, हियर ऑल्सो, हियर user accessing load balancer, okay, then go through that web server, okay, and load the content, जो भी कंटेंट लोड करना है कंटेंट लोड कर देगा और उसके लैपटॉप पर दिखेंगे, ओके, दिस इज इनकमिंग रिक्वेस्ट, दिस इज आउटगोइंग रिस्पॉन्स, ओके, दिस इज इनकमिंग रिक्वेस्ट, this is incoming request, this is outgoing request, okay, इस रिक्वेस्ट से उसको जो चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट भेजेंगे, रिक्वायरमेंट भेजने के बाद यहाँ से डेटा लोड करेंगे, डेटा लोड करने के बाद उसको रिस्पॉन्स मिलेगा यहाँ से, ओके, तो लोड बैलेंसर सेंड दैट रिक्वेस्ट, विल राउट दैट रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर, लोड बैलेंसर यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, ओके, सो यहाँ पर डेटा लोड हो रहा है, जो भी डेटा उसको लोड करना है, लोड करने के बाद वो डेटा इसको मिल रहा है, यहाँ पर भी क्या रहेंगे, पोर्ट इज ओपन, ओके, यहीं पर भी क्या रहेंगे, पोर्ट इज ओपन, सो सेम HTTP पोर्ट इज ओपन हियर, ओके, उसको जो रिस्पॉन्स मिल रहा है किसके थ्रू मिल रहा है, HTTP पोर्ट के इससे मिल रहा है रिस्पॉन्स, ओके, तो एक पोर्ट से रिक्वेस्ट आ रही है कहाँ पर, वेब सर्वर के पास, ओके, to web server, like this it will load the web content and response go back through load balancer, response किसके थ्रू जा रहा है, load balancer थ्रू जा रहा है, okay, so this request goes inside port, कहाँ से आ रही है, HTTP पोर्ट से, okay, यहाँ पर inside कहाँ से आ रही है, वेब सर्वर पे HTTP पोर्ट से, okay, now my request goes through load balancer, अभी मेरी रिक्वेस्ट, यूजर की रिक्वेस्ट कहाँ आ रही है, लोड बैलेंसर आ रही है, ओके, why we need to open HTTP port for load balancer, तो देख किसके लिए किया है हमने पोर्ट ओपन, my load balancer access customer request in order route web server 1 and web server 2, इसलिए हमने HTTP पोर्ट ओपन किया है, we can create one security group for that, okay, so security group हम create करेंगे, ओपन करेंगे HTTP पोर्ट, ओके, करेक्ट, तो यहाँ पर डायरेक्टली यूजर एक्सेस करता था बिफोर लोड बैलेंसर, अभी क्या हो रहा है कि अभी सिर्फ सिंपल हम लोड बैलेंस से यहाँ पर लगा रहे हैं, ओके, सो लोड बैलेंसर से यूजर क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, अभी उसको वेब सर्वर पता है क्या कौन सा है, कौन सा है, तो वेब सर्वर का उसको IP एड्रेस पता नहीं, कौन सा वेब सर्वर पर उसकी रिक्वेस्ट जा रही है वो भी उसको पता नहीं चलता है, जस्ट उसको रिस्पॉन्स मिलता है, करेक्ट, यहाँ पर क्या होता था बिफोर लोड बैलेंसर, उसको पता रहता था कि उसका IP एड्रेस क्या है, ओके, सो कौन से IP एड्रेस पर उसकी रिक्वेस्ट जा रही है, कौन से IP एड्रेस से उसको डेटा आ रहा है, ही कैन एबल टू सी, ओके, उसको दिखता था कि कौन से वेब सर्वर को एक्सेस कर रहा है, कौन से वेब सर्वर से उसको डेटा आ रहा है, बट यहाँ पर यूजर डू नॉट एबल टू सी कि उसकी रिक्वेस्ट कौन से सर्वर पर जा रही है, कौन से वेब सर्वर पर जा रही है, ओके, तो already I told you कि two types of load means two advantage of load balancer, distribute the load and health check, okay, so web server is healthy or not, तो कैसे हम चेक करेंगे, देखो हमारे पास कितने पॉइंट बोला था मैंने, we have 2 points,
कौन से पॉइंट्स हैं? वन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट द लोड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट द लोड। ओके, लोड क्या कर रहा है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज है हेल्थ चेक ऑफ सर्वर। ओके, हेल्थ चेक ऑफ सर्वर। तो आपको क्या पता चल गया? देखो, ये अच्छे से पता चल गया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट लोड। वो कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड? एवरीवन अंडरस्टैंड? यस और नो? कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. Yes, sir. अभी आपको हमें देखना है हेल्थ चेक कैसे करता है। तो वेब सर्वर इज हेल्थ, सो राउट दैट ट्रैफिक। वेब सर्वर इज नॉट हेल्दी, सपोज ये वेब सर्वर हेल्दी नहीं है, तो वो कैसे राउट करता है? ओके, सो वी विल सी नाउ। दिस इज अवर लोड बैलेंसर, ये हमारा लोड बैलेंसर है। ओके, दिस इज अवर वेब सर्वर 1, दिस इज वेब सर्वर 2। वेब सर्वर 1, द वेब सर्वर 2। करेक्ट? सो यहाँ पर देखो, दिस इज अवर लोड बैलेंसर। दिस इज अवर लोड बैलेंसर। ओके, तो देखो ये कैसे करता है? हाउ इट इज वेरीफाई दिस सर्वर इज अप एंड रनिंग और नॉट? तो वेब सर्वर इज हेल्दी, सो राउट दैट ट्रैफिक। अगर से ये हेल्दी है तो यहाँ पर ये राउट करेगा ट्रैफिक। अगर से ये हेल्दी है तो यहाँ पर ट्रैफिक क्या करेगा? राउट करेगा। ओके, सो वी आर क्रिएटिंग वन फाइल गिवन बाय नेम। हम क्या करेंगे? एक फाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ओके, सो सेम फाइल वी हैव क्रिएटेड, सपोज वी हैव क्रिएटेड हियर वन फाइल, उसका नाम दे देंगे हम ये। ओके, उसका नाम दे दिया हमने ये। उसका नाम दे दिया ये। यहाँ पर भी हम सेम फाइल क्रिएट करेंगे, वी हैव क्रिएट हियर आल्सो सेम फाइल ये। सेम फाइल नेम, उसका नाम क्या रहेगा? उसका देखो कंटेंट कुछ भी रहो इनसाइड, बट उसका नाम क्या रहेगा? सेम रहेगा। सपोज इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पर भी क्या रहेगा? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ओके, सो यहाँ पर भी हम इसका नाम दे देते हैं। तो हमने एक फाइल क्रिएट कर ली। ये नाम की फाइल क्रिएट कर ली हमने। ओके, सो सेम कंटेंट है, सेम फाइल है। So load balance is verified by server is up and running or not. Okay, so how to refer, how to verify कि मेरा सर्वर, जो वेब सर्वर 1 और वेब सर्वर 2 अप एंड रनिंग है कि नहीं, उसके लिए हमने क्या किया? एक फाइल बनाई। सो वी आर क्रिएटिंग वन फाइल गिवन बाय नेम ए। ओके, तो ए नाम की हमने फाइल बनाई। अभी कैसे हेल्थ चेक करेंगे वो देखो। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू ओपन पोर्ट। कौन सा पोर्ट ओपन करना पड़ेगा हमें? एक पोर्ट ओपन करना पड़ेगा यहाँ पे, दिस इज पोर्ट, एचटीटीपी पोर्ट हमें क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा। देन यहाँ पर एक पोर्ट ओपन करेंगे। Okay, same port here also open, both web server same configuration रहेगा।
सेम पोर्ट रहेंगे। ओके, मीन्स क्या बोल सकते हैं हम, इसकी मिरर कॉपी रहेंगी, वेब सर्वर 1 मिरर कॉपी वेब सर्वर 2। ओके, तो अभी कैसे हेल्थ चेक करेंगे, टू चेक हेल्थ दैट मीन्स दिस लोड बैलेंसर, ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, लोड बैलेंसर this is the my load balancer and these are my web servers। okay, load balancer will verify the my server is up and running, ये जो मेरे वेब सर्वर्स है ये अप एंड रनिंग है, वर्किंग फाइन है और नॉट। ओके, और स्टॉप है ये चेकिंगा। हाउ विल इट चेक वेदर सर्वर इज अप एंड रनिंग और नॉट, तो कैसे चेक करेगा, वी हैव क्रिएटिंग फाइल ऑन वेब सर्वर 1 or 2। okay, so we have created file on web server। okay, so कौन सी फाइल की, you can create any file, give any name for any name। so आप कौन सा भी नेम दे सकते हो, बट मैंने कौन सा दिया, आई गिविंग नेम ये। ओके, बट ये फाइल यहाँ पर है, ये फाइल यहाँ पर है और ये फाइल यहाँ पर, फाइल नेम क्या रहेगा, सेम रहेगा। नाउ वी इन्फॉर्म टू लोड बैलेंसर, हम इन्फॉर्म करेंगे लोड बैलेंसर को कि दिस फाइल नेम विच आर गिविंग टू यू, जो हमने उसको फाइल नेम दिया है ये। ओके, सो एंड यू गो थ्रू दिस फाइल नेम। अभी ये क्या कर रहा है, माई वेब सर्वर 1 एंड वेरीफाई द फाइल इज प्रेजेंट और नॉट। यहाँ पर ये क्या करेगा, देखो दिस लोड बैलेंसर क्या करेगा, लोड बैलेंसर देखेगा कि यहाँ पर एक फाइल क्रिएट की है कॉमन। ओके, सो वन फाइल क्रिएटेड, कॉमन फाइल एक क्रिएट की है ये नाम की, करेक्ट, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ये नाम की फाइल है। तो इसको क्या करना है, लोड बैलेंसर को मेरे वेब सर्वर 1 को वेरीफाई करना है कि वेब सर्वर 1 इज रनिंग फाइन और नॉट। ओके, सो यहाँ पर वो सर्च करेगा विच फाइल प्रेजेंट, ए फाइल। ओके, लोड बैलेंसर नोज द नेम ऑफ फाइल, कौन सी फाइल है ये हमने पहले इंडिकेट कर दिया। अभी क्या होगा कि जो भी लोड बैलेंसर है, लोड बैलेंसर क्या करेगा, सेंड वन रिक्वेस्ट, लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट सेंड करेगा, किसको रिक्वेस्ट सेंड करेगा, load balancer send one request to web server 1। okay, web server 1 को request send करेगा। okay, and verify the file name, verify the file is present or not, verify कर लिया उसने कि file is present or not, and it will find, अगर से उसको दिख गई फाइल, okay, it find that file, देन अज्यूम दैट सर्वर इज अप एंड रनिंग। उसको क्या दिखेगा, अभी रिस्पॉन्स चलेगा इस यहाँ पर कि सेम नाम की फाइल यहाँ पर भी प्रेजेंट है। ओके, लोड बैलेंसर सेंड वन रिक्वेस्ट, अगर से लोड बैलेंसर ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, इस रिक्वेस्ट को क्या बोलते हैं, इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट। इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट। ओके, इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट, internal ping request। okay, so load balancer send one request called as internal ping request which whether that file is available or not and response sent to the load balancer। ये load balancer को बताएगा कि response says that load balancer file is available on web server 1। okay, then load balancer keeps sending customer request to that वेब सर्वर 1। अभी देखो लोड बैलेंसर को कैसे पता चल रहा है कि सर्वर अप एंड रनिंग है, ये क्या करेगा, सबसे पहले इसको वेरीफाई करने के लिए ये लोड बैलेंसर एक फाइल क्रिएट करेगा, यहाँ पर सेम फाइल नेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम फाइल रहेगा, सेम फाइल नेम रहेगा। ओके, देन उसको पता करना है कि ये ये जो वेब सर्वर है, वेब सर्वर 1 इज हेल्दी और नॉट, ये रनिंग है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, एक इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट भेजेगा, इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट उसने भेज दी, और उसको अगर से रिस्पॉन्स मिल गया है कि दैट फाइल इज अवेलेबल ऑन वेब सर्वर 1, तो रिस्पॉन्स किसके पास जाएगा, लोड बैलेंसर। जैसे ही उसके पास रिस्पॉन्स गया तो लोड बैलेंसर क्या अज्यूम करेगा, दिस सर्वर इज हेल्दी, मींस इस पर वो क्या करेंगे, कस्टमर रिक्वेस्ट सेंड। ओके, सपोज माय वेब सर्वर इज टॉप स्टेट, इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट नॉट गो इनसाइड दी सर्वर्स। ओके, तो यहाँ पर देखो अगर से क्या हो गया, तो यहाँ पर इस
लोड बैलेंसर ने एक रिक्वेस्ट भेजी, वो रिक्वेस्ट यहाँ पर आई। ओके, सो रिक्वेस्ट इनसाइड ही नहीं गई। ओके, इनसाइड नहीं गई और उसको फाइल नेम, जो भी फाइल नेम था, फाइल नेम नहीं मिला उसको। ओके, दैट फाइल नेम इज नॉट प्रेजेंट हियर, या फाइल नहीं मिली, और रिस्पॉन्स चलेगा कि दैट फाइल इज नॉट प्रेजेंट। मीन्स वो क्या बोलेगा, सर्वर, देखो आइडियली अगर से आपने वैसे देखा कंसोल पे तो सर्वर इज अप एंड रनिंग, बट एक्चुअली व्हाट हैपन कि उसको अगर से फाइल नेम नहीं मिल रहा है, दैट फाइल नेम इज नॉट प्रेजेंट, तो कंसिडर क्या करता है, दिस सर्वर इज डाउन। ओके, वो सर्वर क्या है, डाउन है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Okay, suppose my server is stopped, that internal ping request not go inside the servers। okay, जो मेरी इंटरनल जो भी रिक्वेस्ट रहेंगी, इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट नॉट गोइंग टू inside the servers। okay, so no any response from, no any response received from load balancer। यहाँ से उसको रिस्पॉन्स मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट ही उसकी इनसाइड नहीं जा रही। ओके, लोड बैलेंसर स्टॉप सेंडिंग रिक्वेस्ट। अभी लोड बैलेंसर क्या करेगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड कर रहा था, यहाँ पर कस्टमर रिक्वेस्ट सेंड करेगा क्या, नहीं। स्टॉप सेंड रिक्वेस्ट, आई मीन स्टॉप सेंडिंग कस्टमर रिक्वेस्ट टू दिस स्टॉप सर्वर्स। ओके, सो यहाँ पर वो नहीं, एक भी रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, वो कहाँ राउट करेगा, हेल्दी सर्वर को। ओके, सो नाउ चेकिंग ऑफ हेल्थ, सम फाइल्स आल्सो क्रिएटेड। यहाँ पर क्या होगा कि ये फाइल इज क्रिएटेड, ये फाइल इज क्रिएटेड। ओके, ये फाइल क्रिएटेड, एवरी वेब सर्वर वी हैव क्रिएटेड फाइल नेम, सेम फाइल नेम। ओके, शुड नॉट चेंज द नेम। अगर से आपने नेम चेंज कर दिया तो सर्वर पर रिक्वेस्ट ही नहीं जाएगी। करेक्ट, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो सिक्योरिटी डिफॉल्ट, सिक्योरिटी ग्रुप हम सिलेक्ट करेंगे। कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट करना है हमें, तो वी नीड टू सिलेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप। अभी हम क्या करते हैं, हमारा एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लेते हैं। ओके, दिस इज सिक्योरिटी ग्रुप, तो हम यहाँ पर एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लेते हैं और वही अटैच करेंगे। ओके, तो यू कैन क्रिएट ऑल्सो सिक्योरिटी ग्रुप हियर ऑल्सो। इसमें कौन सा पोर्ट चाहिए हमें, सिक्योरिटी ग्रुप में HTTP पोर्ट चाहिए, ये ध्यान में रखना, सिर्फ HTTP पोर्ट ओपन होना चाहिए। ओके, तो वी नीड टू क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, इनबाउंड रूल, ऐड इनबाउंड रूल, डिस्क्रिप्शन हमें नाम देना पड़ेगा उसका। हम क्या देते हैं, लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, देन सेम नेम इसमें भी देते हैं। देन VPC में डिफॉल्ट ही रखना है। इनबाउंड रूल कस्टम्स, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं, एक तो पहले हमें ऑल ट्रैफिक रखना पड़ेगा, कस्टम एनीवेयर, देन ऐड रूल, कौन सा रखना है हमें, HTTPS। ओके, HTTP, देन ऐड रूल अगेन HTTPS, एवरीवन कैन एबल टू एक्सेस, इसलिए हमें 00 देना पड़ेगा। देन हम यही जो सिक्योरिटी ग्रुप है किसके लिए यूज करेंगे, सर्वर के लिए। सो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर SSH पोर्ट भी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, उस पर लॉगिन लेना है। ओके, तो यहाँ पर हम एनीवेयर डाल देते हैं। देन ऑल ट्रैफिक, इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, ऑल ट्रैफिक 00 डिलीट। ओके, सो ये क्या करेगा, आउटबाउंड रूल है। ओके, टैग मैं ऑलरेडी दे दिया इसका नाम। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप हमारा क्रिएट हो गया। अभी हम कहाँ जाते हैं, हमारे लोड बैलेंसर पर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप हमें डिफॉल्ट नहीं रखना है, हमने हमारा क्रिएट किया है। ओके, तो विच सिक्योरिटी ग्रुप वी हैव क्रिएटेड, हमें कुछ रिफ्रेश करना पड़ेगा, डिलीट, देन इट विल शो यू।
ओके सॉरी, मैंने सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ पर बनाया, नॉर्थ वर्जीनिया में। ओके, सो वी नीड टू स्विच ऑन मुंबई लोकेशन फर्स्ट। मुंबई लोकेशन में हमें सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। वी नीड टू क्रिएट वन सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पर हम क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप बोलते हैं। ओके, अगेन ऐड इनवर्ट रूल sh कस्टम एनीवेयर 0, ये हमारे वेब सर्वर के लिए। ऑल ट्रैफिक्स कस्टम एनीवेयर ऐड रूल https http एनीवेयर https। तो ये पोर्ट हमें ओपन चाहिए, करेक्ट। दिस पोर्ट वी नीड टू ओपन। तो अभी हम ये पोर्ट ओपन कर दिए हमने। यहाँ इसका नाम देना पड़ेगा माय लोड बैलेंसर। सेम डिस्क्रिप्शन में भी हम कंटेंट डाल देते हैं। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हुआ कहाँ, मुंबई लोकेशंस पे। ओके, दिस सिक्योरिटी ग्रुप इज क्रिएटेड नाउ। माय सिक्योरिटी ग्रुप, माय एलवी सिक्योरिटी ग्रुप। अभी हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप आ जाएगा। ओके, दिस इज द सिक्योरिटी ग्रुप। तो वी हैव सिलेक्टेड माय सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, यहाँ पर देखो लिसनर एंड राउटिंग। ओके, लिसनर कौन सा पोर्ट है, HTTPS। ओके, सो हमने देखा अभी कि लिसनर कौन सा पोर्ट है हमारा, HTTPS है, करेक्ट। HTTPS पोर्ट यहाँ पर हम यूज करने वाले। ओके, HTTPS पोर्ट लिसनर प्रोटोकॉल HTTPS मीन रूल किसके रहेंगे, HTTPS का पोर्ट नंबर क्या है, 80 है। ओके, सो इंस्टेंस ऑल्सो लिसनर, दोनों भी इसके लिए सेम है। ओके, देन हेल्थ चेक इज इम्पोर्टेंट। हेल्थ चेक मीन्स सर्वर, वो हमारा सर्वर जो हम सर्वर यूज करने वाले हैं, दिस सर्वर इज अप एंड रनिंग और नॉट। तो हमें क्या करना है, हेल्थ चेक करना है। तो हमने पिंग टारगेट, हम पिंग रिक्वेस्ट देखो, योर लोड बैलेंसर ऑटोमेटिकली परफॉर्म द हेल्थ चेक टू टेस्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल रजिस्टर इंस्टेंस। ओके, जितने इसमें रजिस्टर इंस्टेंस है इस लोड बैलेंसर में, वो क्या करेंगे, उसकी हेल्थ चेक करेंगे। ओके, सो अवेलेबल है कि नहीं है। ट्रैफिक इज ओनली राउटेड टू हेल्थी इंस्टेंस, जो हेल्दी इंस्टेंस होगा उस पर ट्रैफिक राउट होगा, जो सर्वर डाउन रहेगा उस पर, अनहेल्दी सर्वर रहेगा उस पर ट्रैफिक सेंड होगा क्या, नहीं। ओके, तो ट्रैफिक इज नॉट सेंडिंग दैट अनहेल्दी सर्वर which is determined on their response to the health checks। ओके, तो वहां पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया है, 80 पोर्ट यूज किया है। यहाँ पर देखो पोर्ट ओपन है, HTTPS पोर्ट ओपन है। इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट कहाँ से जा रही है, HTTPS से जा रही है। ओके, सो यहाँ पर पिंग पाथ कौन सा दिया है, दिस फाइल। ओके, दिस फाइल, यहाँ पर ये फाइल नेम दिया है, यहाँ पर index.html फाइल दिया है, करेक्ट। एडवांस हेल्थ चेक, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, what is mean by advanced health checks? Response time. The time of wait for EC2 instance to respond to health checks. Okay. So अभी देखो ये जो इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट भेज रहा है, इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कितने टाइम में मिलना चाहिए, मुझे कितने टाइम में मिलना चाहिए वो हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जो इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट है, इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट उसको कितने टाइम में मिलनी चाहिए, लोड बैलेंसर को कितने टाइम में रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, वो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेकंड में डालना पड़ेगा। ओके, अगर से हमने 2 सेकंड बोले तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट सेंडिंग टू वेब सर्वर। ओके, वेब सर्वर के पास रिसीव होंगी, वो चेक करेगा दैट ये फाइल नेम प्रेजेंट और नॉट हियर, उसको मिल गया कि ये फाइल इज प्रेजेंट। वो रिस्पॉन्स इसके पास जाएगा, किसके पास, लोड बैलेंसर के पास। इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, 2 सेकंड्स। अंडरस्टैंड, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes. ओके, देन इंटरवल, अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन हेल्थ चेक सेंड EC2 इंस्टेंस। ओके, अभी पिंग रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, अभी क्या करेगा कि ये जो फर्स्ट रिस्पॉन्स उसको करेक्ट आ गया है, ओके 2 सेकंड में मिल गया है, उस पर ही वो डिसाइड नहीं करेगा दैट सर्वर इज हेल्दी और नॉट। वो क्या करेगा, अगेन सेंड वन पिंग रिक्वेस्ट। ओके, अगेन सेंड वन पिंग रिक्वेस्ट एंड चेक, वो हेल्थ चेक करेगा। अगर से इसका भी रिस्पॉन्स उसको सही आया, ओके,
इसका भी रिस्पॉन्स सही है तो क्या बोलेगा, दो इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट का, अगर सिर्फ टू इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स उसको आ रहा है, तभी वो क्या बोलेगा, दिस रिक्वेस्ट इज मीन्स दिस सर्वर इज अप एंड रनिंग। ओके, ओके, ये देखो इसने क्या कर दिया, सेंडेड वन रिक्वेस्ट। ओके, रिक्वेस्ट सेंड की, किसको रिक्वेस्ट सेंड की, इस वेब सर्वर को। ओके, कौन सी रिक्वेस्ट सेंड की, लोड बैलेंसर ने रिक्वेस्ट सेंड की इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट, किसके लिए, ये सर्वर हेल्दी है कि नहीं। ये रिक्वेस्ट क्या चेक करती है कि दिस फाइल नेम इज प्रेजेंट और नहीं, प्रेजेंट और नॉट। ओके, सो कौन सा फाइल नेम, ये फाइल नेम जो यहाँ पर लोड बैलेंसर पर एक फाइल क्रिएट की है, जो हम यहाँ पर पाथ दे रहे हैं इसका। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड दिस फाइल नेम। ओके, पिंग पाथ। तो यहाँ पर आएगा, वो देखेगा कि दैट फाइल नेम इज प्रेजेंट और नॉट, जो भी लोकेशन हमने दिया है वहां पर फाइल प्रेजेंट है, ये रिस्पॉन्स चलेगा, दिस इज द वन पिंग रिक्वेस्ट। ओके, दिस इज द वन पिंग रिक्वेस्ट। अभी वो क्या करेगा, उस पर डिसाइड नहीं करेगा कि दैट सर्वर इज अप एंड रनिंग, ही विल सेंड अगेन। वो क्या करेगा, एक पिंग रिक्वेस्ट अगेन भेजेगा। ओके, सेकंड पिंग रिक्वेस्ट, ही विल सेंड इट सेकंड पिंग रिक्वेस्ट, सेकंड पिंग रिक्वेस्ट आएंगी, यहाँ पर चेक करेगा कि दैट फाइल इज प्रेजेंट और नॉट, और इसका रिस्पांस कितने टाइम में मिलना चाहिए उसको, 2 सेकंड्स में। ओके, अब 2 सेकंड्स में रिस्पांस मिल रहा है, दोनों भी इसमें रिस्पांस मिला, टू इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट में अगर से उसको रिस्पांस मिला विद इन 2 सेकंड्स में, तो क्या बोलेगा, दैट सर्वर इज अप एंड रनिंग। ओके, दैट सर्वर इज अप एंड रनिंग मीन्स वो क्या बोलेगा कि दिस सर्वर इज अप एंड रनिंग। ओके, दिस सर्वर इज अप एंड रनिंग। अब जो ये ड्यूरेशन है, फर्स्ट पिंग रिक्वेस्ट और सेकंड पिंग रिक्वेस्ट में का जो डिस्टेंस रहेगा, वो कितना रहेगा, 5 सेकंड। ओके, आप इसको कम भी कर सकते हो और ज्यादा भी कर सकते हो। ओके, सो हम 5 सेकंड रखेंगे। तो फर्स्ट पिंग रिक्वेस्ट भेजी उसने, वो वेट करेगा 5 सेकंड्स, और दूसरी पिंग रिक्वेस्ट भेजेगा आफ्टर 5 सेकंड्स के बाद में। ओके, और उसका रिस्पॉन्स इस इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कितने टाइम में मिलना चाहिए उसको, 2 सेकंड्स में मिलना चाहिए। करेक्ट। अभी अनहेल्दी थ्रेशोल्ड मीन्स जब वो पिंग रिक्वेस्ट सेंड करेगा, तो जैसे ही हमने बोला, तो देखो अभी क्या होगा कि इसने पिंग रिक्वेस्ट भेज दी। ओके, तो पिंग रिक्वेस्ट भेज दी, फर्स्ट पिंग रिक्वेस्ट इज कम्स। ओके, और इसको क्या होगा, इसको ये नंबर की फाइल दिखी नहीं। ओके, हियर नॉट फाउंड, और ये रिस्पॉन्स चलेगा किसके पास, इस लोड बैलेंसर के पास विद इन 2 सेकंड्स पे। बट उसको पता चला कि ये नाम की फाइल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ये नाम की फाइल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो क्या करेगा, वेट करेगा कितना, वो करेगा, वेट करेगा मीन्स 5 सेकंड तक वेट करेगा, देन अगेन सेंड वन इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट। ओके, तो क्या करेगा, अगेन सेंड इट वन इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट, वन इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट सेंड करेंगे 5 सेकंड का वेट करके, अगेन वो चेक करेगा, अगर से उसको यहाँ पर भी वो फाइल नहीं मिली, इस पिंग रिक्वेस्ट में भी फाइल नहीं मिली, उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला विद इन 2 सेकंड्स में, देखो फाइल प्रेजेंट ही रह सकती है, उसको अगर से 3 सेकंड्स में रिस्पॉन्स मिला, यहाँ पर हमने कितना दिया, 2 सेकंड्स। ओके, रिस्पॉन्स टाइम कितना दिया, 2 सेकंड, अगर से उसको 3 सेकंड 4 सेकंड में रिस्पॉन्स मिला, फिर भी वो क्या बोलेगा, दैट सर्वर इज नॉट हेल्थी। ओके, बट उसको रिस्पॉन्स कितना है, कितने टाइम में मिलना चाहिए, विद इन 2 सेकंड्स, 2 सेकंड्स के अंदर मिलना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी बोलेगा ये लोड बैलेंसर की दैट सर्वर इज
up and running. Understand? Okay. Yeah, healthy threshold. Healthy threshold means number of consumption health check डिक्लेयर बाय EC2 इंस्टेंस. अभी हमने कितना बोला है, 2 बार वो चेक करेगा, 2 बार पिंग रिक्वेस्ट भेजेगा. ओके, सो इसे हम 3 बार भी बोल सकते हैं, 4 बार भी बोल सकते हैं. तो हम कहाँ तक, 10 बार, 10 तक हम क्या करेंगे, इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट भेजेंगे. तो हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, 2 to 10. तो हम यहाँ पर ओनली 2 लिखते हैं. मीन्स वो कितनी इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट भेजेगा, 2 ही इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट भेजेगा. तो उसको पता चल जाएगा दैट सर्वर इज हेल्दी और नॉट. हेल्दी के लिए 2 और अनहेल्दी के लिए भी 2. ओके, तो 2 में डिसाइड कर लेगा वो, 2 पे इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट भेजेगा, हेल्दी है कि नहीं है. अगर से एक इसमें मिला, एक इसमें नहीं मिला, तो भी वो क्या बोलेगा, दैट एक इसमें मिल गया उसको, फर्स्ट इसमें नहीं मिला, फर्स्ट इसमें नहीं मिला, फर्स्ट इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट में, सेकंड इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट में अगर से उसको रिस्पॉन्स मिला, तो क्या बोलेगा कि सर्वर इज हेल्दी. नहीं तो उसका भी वेट करेगा. वेट करने के बाद यहाँ पर हमने क्या बोला है कि जब तक उसको दो रिक्वेस्ट, इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट का आउटपुट नहीं मिलता, रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तब तक वो क्या नहीं बोलेगा, हेल्दी थ्रेशोल्ड नहीं बोलेगा. ओके, जब तक उसको इसका भी रिस्पॉन्स क्या मिला, यस मिला, इस इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट का, और इस भी इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट का उसको रिस्पॉन्स मिल गया. ओके, सो उसके बाद में वो क्या बोलेगा, दैट सर्वर इज हेल्दी. ओके, मीन्स ये सर्वर क्या है, हेल्दी है. और यहाँ पर क्या बोला हमने, अनहेल्दी थ्रेशोल्ड 2. अनहेल्दी थ्रेशोल्ड मीन्स उसने पिंग रिक्वेस्ट भेज दी, उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला यहाँ पे. ओके, सो ही डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स, मीन्स वो फाइल नहीं प्रेजेंट मिली, या फिर रिस्पॉन्स उसका 4 सेकंड में मिला, तब भी क्या बोलेगा कि वो सर्वर, मीन्स वो इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट का उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला, एक फाइल नहीं मिली. ओके, देन ही विल वेट. कितना वेट करेगा वो, 5 सेकंड्स वेट करेगा इन दोनों बीच में. मीन्स फर्स्ट इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट होगी 2, अभी दूसरी जब इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट हम भेजेंगे तभी उसको फाइल नहीं मिली, तो क्या बोलेगा, अनहेल्दी थ्रेशोल्ड. ओके, अगर से एक इसमें मिल गई, एक इसमें मिल गई, तो क्या करेगा, अगेन सेम 1 पिंग रिक्वेस्ट. बिकॉज हमने क्या बोला है कि जब तक उसको 2 बार रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तब तक वो डिक्लेयर नहीं करेगा हेल्दी थ्रेशोल्ड है कि नहीं है, मीन्स हेल्दी है सर्वर की नहीं है. ओके, और जब तक उसको 2 बार, मीन्स 2 बार रिस्पॉन्स नहीं मिला, तभी वो डिक्लेयर करेगा दैट सर्वर इज अनहेल्दी. अंडरस्टैंड? और जो भी हेल्दी सर्वर रहेगा उसको क्या करेगा वो, क्या करेगा वो, क्या करेगा वो, रिस्पॉन्स, अगर से उसको रिस्पॉन्स, अनहेल्दी सर्वर्स का रिस्पॉन्स नहीं मिला, मीन्स सर्वर अनहेल्दी है, सर्वर स्टॉप है, तो उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला. अगर से उसको रिस्पॉन्स मिलता है तो क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड, कस्टमर रिक्वेस्ट सेंड करेगा जो भी हेल्दी सर्वर है उस पर. ओके, तो देन अभी हमें इंस्टेंस यहाँ पर ऐड करना है. सो हमने ऐड इंस्टेंस, हमने इंस्टेंस ऐड किए है क्या, क्रिएट नहीं. तो वी नीड टू क्रिएट फर्स्ट इंस्टेंस. तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्रिएट हियर इंस्टेंस. ओके, लॉन्च टू इंस्टेंस. वेब सर्वर 1, select replace project, select existing, सेम सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर भी सिलेक्ट करेंगे. ओके, so MySG security group, then we need to go to here advanced detail. एडवांस डिटेल में हमें क्या करना पड़ेगा, एडवांस डिटेल में हम यहाँ पर लिखते हैं हैश एक्सक्लेमेशन मार्क इन बैच. ओके, देन दोस्तों यहाँ पर अगर से आपने कमांड गलत लिखी तो नेक्स्ट कमांड वो चलाएंगे ही नहीं. ओके, फॉर http convert. Okay, then cd
स्लैश वैर स्लैश www स्लैश html, okay, then echo code। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, माय गूगल वन, ठीक, माय गूगल वन index.html, correct, then systemctl start httpd, ओके। तो ये हम कॉपी करके रख देते हैं। सर वो HTTPD हमने स्टार्ट नहीं किया ना, किया नहीं, सिस्टम एक्टिव स्टार्ट, हाँ यहाँ पे क्या, ओके। सिस्टम स्टार्ट लास्ट में क्यों किया? अगर से आपने पहले स्टार्ट कर दिया ना तो उसके बाद में कमांड चलती रही, जब तक आप क्यू प्रेस नहीं करोगे तब तक वो मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट पर नहीं आता है, नेक्स्ट कमांड प्रॉम्प्ट पर, ओके। सो हमें वो लास्ट में स्टार्ट करना है, ये ध्यान में रखना है, ओके। तो ये हो गया। अभी हम यहाँ पर एक वन इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। इंस्टेंस लॉन्च हो गया हमारा। दो भी सर्वर लॉन्च करते थे बट हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे फिर कौन सा सर्वर हमने मीन्स कौन सा रिक्वेस्ट जारी कौन से सर्वर पर जारी की नहीं जारी। तो अभी हम यहाँ पर देते हैं वेब सर्वर 2, वेब सर्वर 2, ओके। अमेजोन लिनक्स, देन T2 माइक्रो, देन हमें क्या करना है, AWS प्रोजेक्ट्स की पेयर, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, तो बाय LB, ओके। एडवांस डिटेल्स, तो एडवांस डिटेल में हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर क्या देंगे, वेब सर्वर 2, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वेस्ट हमारी अच्छे से जा रही है कि नहीं जा रही, ओके। दोनों भी सर्वर क्रिएट हो गए। वी नीड टू गो टू हियर। तो हम क्या करेंगे, ऐड इंस्टेंस। ऐड इंस्टेंस में अभी यहाँ पर देखो इंस्टेंस दिख रहे हैं क्या आपको, कौन सी इंस्टेंस दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, ओके। तो वी नीड टू गो टू फिल्टर इंस्टेंस, इंस्टेंस नेम। तो फर्स्ट उसको सर्वर को क्रिएट होने दो, देन हमें दिख जाएंगे, ओके। जीरो इंस्टेंस बोल रहा है, हमने कहाँ क्रिएट की वो देखने दो पहले। मुंबई लोकेशन पर ही क्रिएट किया, इनिशियलाइज स्टेज में। सिक्योरिटी ग्रुप, इंस्टेंस, इंस्टेंस अवेलेबल, इसको बाद में करते हैं। तो पहले एट्रीब्यूट, हाँ, एट्रीब्यूट क्या करना है, अगर से आपको यहाँ पर नोड ऐड करना है, ओके। सपोज वन सर्वर इज नॉट हेल्दी, ओके। सो वन सर्वर इज नॉट हेल्दी, तो आपको क्या करना है, नोड ऐड करना है। तो नोड ऐड करने के लिए देखो, सो अनेबल द cross load balancer, so create the load balancer using the console, giving you to opportunities specify additional features to launch, okay। so हम जब लॉन्च करेंगे सर्वर मीन्स लॉन्च करेंगे तो कितने टाइम में यहाँ से वो रिमूव होगा, अटैच होगा वो सर्वर। तो 150 सेकंड्स, ओके। 150 सेकंड्स तक वो क्या करेगा, वेट करेगा, उसके बाद में नए सर्वर को ऐड करेगा। जैसे ही हमने ऐड इंस्टेंस कर दिया तो कितना वेट लेगा, 150 सेकंड्स लेगा वो ऐड करने के लिए प्रॉपरली यहाँ पर,
अंडरस्टैंड? देन लोड बैलेंसर टैग, तो लोड बैलेंसर टैग हमने ऑलरेडी दिया है, वीपीसी, यहाँ पर वीपीसी सेम है, ये तीनों भी हमने अवेलेबिलिटी जोन यूज किए। ओके, सो लिसनर 80 है, health check 2 seconds, 5 seconds, healthy, unhealthy 2 seconds, 2 times. Okay. Create load balancer and instance. It's not ready. Okay, इसको हम क्रिएट कर लेते हैं, बाद में हम ऐड करते हैं। यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो आप, नहीं तो इधर भी ऐड कर सकते हो। नाउ our load balancer is created. Okay, so we need to go to here, click on this load balancer. अभी क्या करना है हमें, सिक्योरिटी, लिसनर, नेटवर्क मैपिंग, टारगेट इंस्टेंस। ओके, टारगेट इंस्टेंस, मैनेज इंस्टेंस, यहाँ पर मैनेज इंस्टेंस करना है। अभी देखो दो सर्वर दिख रहे हैं हमें, इसको क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। ओके, दोनों को भी क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, ऐड करके सेव चेंज करेंगे। रिव्यू दी इंस्टेंस सिलेक्टेड, यस। अभी क्या दिखा रहे, नॉट रजिस्टर दिखा रहे। जब रजिस्टर होंगे तभी इंस्टेंस क्या होंगे हमारे सर्वर पर, मीन्स हमारे इस पे ऐड होंगे। ओके, डिसिलेक्ट नहीं करना है हमें, इसको सिलेक्ट ही करना है, डिसिलेक्ट नहीं करना है, सिलेक्ट करना है। इज द अवेलेबल इंस्टेंस रजिस्टर, so now we need to select। ठीक, अभी हम हमारे लोड बैलेंसर पर जाएंगे, जब टारगेट इंस्टेंस पर जाएंगे तो यहाँ पर इंस्टेंस क्या दिख रहा है, अटैच दिख रहे हैं। बट हेल्थ इश्यू, हेल्थ स्टेटस आउट ऑफ सर्विस, मीन्स अभी तक वो हमारे इसमें अटैच हुए क्या नहीं। वो कितना वेट करेगा, इट विल वेट अप टू 150 सेकंड्स। ओके, सो अगर से हम यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने सर्वर सिलेक्ट किया, हमें भी सर्वर सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, लोड बैलेंसर का डीएनएस नेम, हमें भी सर्वर का आईपी एड्रेस डालने वाले क्या नहीं, हम क्या करने वाले हैं, लोड बैलेंसर का डीएनएस नेम देने वाले हैं। ओके, डीएनएस नेम देंगे और हमें रिस्पांस मिलेगा, यहाँ पर मिल रहा है। ओके, मीन्स हमारे सर्वर क्या हो गए, ऐड हो गए। आउट ऑफ सर्विस, इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो आ जाएगा। वी नीड टू रिफ्रेश दिस वन। देखो कनेक्शन ट्रेनिंग 150 सेकंड्स कितना ले रहा है, 150 सेकंड्स तक वो इन सर्विस नहीं दिखाएगा। 150 सेकंड्स मीन्स 60 मिनट, सॉरी 60 सेकंड्स मीन्स 1 मिनट, अगेन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स एंड 2.5 मिनट्स के बाद में वो इन सर्विस दिखाएगा। ओके, तब तक वो वेट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ यहाँ अगर से हमने 300 सेकंड डालते थे तो 5 मिनट तक वो सर्वर ऐड नहीं करता था, इन सर्विस नहीं दिखाता था। ओके, इन सर्विस दिखा रहा मीन्स दैट सर्वर इज एडेड। ओके, तो अभी देखो, तो अभी हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पे। ओके, सो माई गूगल वन, सो अभी हम क्या करते हैं, वेब सर्वर पर आते हैं, वी नीड टू गो टू दैट वेब सर्वर फर्स्ट। वेब सर्वर पर आएंगे, इसका हम पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक, इसका रिस्पॉन्स क्या आता है वो देख लेते हैं पहले। इसका क्या आ रहा है, माई गूगल वन, करेक्ट, माई गूगल वन वेब सर्वर वन का। अभी वेब सर्वर टू का क्या आना चाहिए, गूगल टू, माई गूगल टू। ओके, का रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए हमें, माई गूगल टू। अभी हम देखते हैं, देखो तो यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट सेंड की तो कहाँ पर आई, माई गूगल वन पर आई फर्स्ट रिक्वेस्ट। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो सेकंड रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए, गूगल टू पर। अगर गूगल टू पे अभी मैं अगेन रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो कहाँ आनी चाहिए, गूगल वन पे। जैसे मैं उसको रिफ्रेश करूंगा मीन्स उस पर क्या आ रही, रिक्वेस्ट आ रही, गूगल वन एंड गूगल टू, गूगल वन एंड गूगल टू, गूगल वन एंड गूगल टू। अंडरस्टैंड? Yes. Yes, दिस sir. इज द Yes, sir. लोड बैलेंसर। ओके, अभी मुझे क्या करना है, आई नीड टू ऐड न्यू नोड। ओके, सो क्या हो रहा है कि मेरा एक सर्वर है, सर्वर इज नॉट हेल्दी, सर्वर इज नॉट हेल्दी, तो एक ही सर्वर पर क्या हो रहा है, लोड आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, इसमें सर्वर ऐड करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑलरेडी एक इंस्टेंस क्रिएट करके रखना पड़ेगा। वी नीड टू क्रिएट वन इंस्टेंस।
यहाँ पर ओके, तो मैं क्या करता हूँ, वेब सर्वर 3 की पेयर, सेलेक्ट सेम की पेयर। सिक्योरिटी ग्रुप आपको सेम देना है एवरीवेयर, बिकॉज सिक्योरिटी ग्रुप अगर से गलत हो गया है तो आपको थोड़ा इशू आएगा उसमें। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, वेलकम टू एयरपोर्ट डालते हैं, डेटा डाल दिया सुडो से वेलकम टू एयरपोर्ट, लॉन्च योर इंस्टेंस। अभी हमने क्या कर दिया, एक इंस्टेंस लॉन्च कर दिया, न्यू इंस्टेंस हमने लॉन्च कर दिया, कौन सा, वेब सर्वर 3, करेक्ट। वेब सर्वर 3 आ गए। अभी यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने सर्वर है, ओनली 2 सर्वर। ओके, तो 2 सर्वर है, 1 और 2, दूसरा तीसरा सर्वर ऐड है क्या, नहीं है। अगर से आपको सर्वर ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज इंस्टेंस पे जाना पड़ेगा। अभी देखो, कनेक्शन ट्रेनिंग 150 सेकंड्स, तो 150 सेकंड्स मीन्स वो क्या करेगा, वेट करेगा 150 सेकंड्स, देन दैट सर्वर को क्या करेगा, रजिस्टर करेगा। ओके, मीन्स यहाँ पर ऐड हो जाएगा वो, बट इन सर्विस दिखाएगा क्या, नहीं। तो लेट्स सी, अभी मैं क्या करता हूँ, इस सर्वर को ऐड करता हूँ। ओके, टू सिलेक्ट दिस सर्वर, मुझे इस सर्वर को क्या करना है, रजिस्टर करना है। ओके, ऑलरेडी रजिस्टर है, ये नॉट रजिस्टर है, इसको सिलेक्ट किया मैंने, सेव चेंज करता हूँ मैं, मेरे लोड बैलेंसर पर आता हूँ, टारगेट इंस्टेंस पर जाता हूँ, तो देखो ये आउट ऑफ सर्विस है अभी, करेक्ट। इन सर्विस है क्या, नहीं है। ये कब तक लेगा, 150 सेकंड्स मीन्स 2.5 मिनट्स। तो देखो, ये सॉरी, मैनेज इंस्टेंस, तीनों को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी वो करेगा, नॉट रजिस्टर करेगा। ये टारगेट इंस्टेंस जितने भी सर्वर है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो अभी हो गए। देखो ये इन सर्विस आ गए अभी, 150 सेकंड से, सॉरी 2.5 मिनट्स, विल टेक सम टाइम्स। ओके, इन सर्विस आ गई। अभी देखो जलवा, यहाँ पर हमने क्या बोला, वेब सर्वर 1, अभी वेब सर्वर 3 पे चली गई, वेब सर्वर 2 पे चली गई। देखो, एक बार एक का नाम आ रहा है, वेब सर्वर 1, वेलकम टू एयरबॉर्न, वेब सर्वर 2। ओके, तो तीनों भी इस पर रिक्वेस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही। कैसा हो रहा है कि एक आपको दिख रहा है कि वेब सर्वर 2 2 बार दिख रहा है, वेब सर्वर 1 माई गूगल 2 बार दिख रहा है, नहीं। ओके, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और हेल्थ चेक कर रहा है। हेल्थ चेक कैसे कर रहा है कि अभी देखो, दिस सर्वर इज हेल्दी। ओके, तो सर्वर को उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, वी नीड टू गो टू हियर दिस सर्वर, इस सर्वर के इनसाइड जाते हैं और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल उड़ा देते हैं। ओके, EC2-user @ SSH for credential routes, AWS project PPK, clearance change, and it is like that www HTML LL। तो इसको क्या करते हैं, अरे भाई को, अरे उड़ा देते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ओके, इसको मैंने रिमूव कर दिया, कौन से सर्वर से, वेब सर्वर 2 से मैंने रिमूव कर दिया। ओके, कहाँ से रिमूव किया, वेब सर्वर 2 से रिमूव किया।
अभी हमारा लोड बैलेंसर देखो, लोड बैलेंसर कैसे काम करता है, हेल्थ चेक कैसे करता है लोड बैलेंसर। तो यहाँ पर आएगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, वो कौन सी फाइल सर्च करेगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। हमने यहाँ पर ये फाइल रखी थी, तो यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लोड बैलेंसर में कौन सी है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रखी है हमने। ओके, तो यहाँ पर आएगा वो, देखो दैट सर्वर इज वर्किंग फाइन, यहाँ पर देख सकते हो आप, सर्वर इज रनिंग। ओके, सर्वर रनिंग है, कुछ इश्यू है क्या उसमें, नहीं, सर्वर इज इन स्टॉप स्टेट में है क्या, नहीं। यहाँ पर भी देख लो, चेक टारगेट इंस्टेंस में सर्वर इज इन सर्विस, ओके, नो एनी इश्यू। बट अभी वो जो माई गूगल टू पर है वहां पर रिक्वेस्ट सेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या बोलेगा, दिस इज अनहेल्दी सर्वर्स। ओके, आर ई रिक्वेस्ट, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल उड़ा दी उसकी। ओके, अभी देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, सिर्फ जस्ट यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ टच से, TOUCH, टच, और सेम फाइल नेम क्रिएट करता हूँ, उसमें कंटेंट कुछ भी नहीं डालता हूँ। ओके, कंटेंट कुछ भी नहीं डालूंगा, फिर भी क्या होगा देखो, आ गई, वो ब्लैंक पर रिक्वेस्ट भेज रहा है। ओके, वेलकम टू एयरबॉ गूगल वन, अभी ब्लैंक आएगा क्योंकि उसमें कुछ डाला है क्या हमने, नहीं। कैट करके देखो इसमें कुछ है क्या, नहीं है, वो ब्लैंक पर रिक्वेस्ट भेज रहा है। अभी रिक्वेस्ट आ रही है, अगर से मैंने इसको vi इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो मैंने इसमें कंटेंट डाल दिए, कौन से कंटेंट डाल दिए मैंने, यहाँ पर है हमारे कंटेंट, कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो सेव कर देते हैं। अभी देखो, वेलकम टू एरबर आ रहा, मीन्स वेब सर्वर 3, ये वेब सर्वर 1। स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, इंडेक्स का स्पेलिंग। क्या बोला, स्पेलिंग इंडेक्स का इंडेक्स स्पेलिंग स्पेलिंग INDEX। ओके ओके ओके, सॉरी। आ गया इसका रिस्पॉन्स, देन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही, यहाँ पर पता चल रहा है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही करके, रिक्वेस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही कि नहीं हो रही, यस और नो। हेल्थ चेक यस। कैसे करते हैं वो भी बताया मैंने, हाउ टू चेक दी हेल्थ, अंडरस्टैंड एवरीवन, दिस इज आवर लोड यस। बैलेंसर। ओके, अगर से हमें इसमें से सर्वर अभी निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम सर्वर, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, सिलेक्ट करेंगे इस नोड को। ओके, ये नोड हमें इसमें से निकालना है, लोड बैलेंसर से, यहाँ से क्या करेंगे, डी रजिस्टर कर देंगे। ओके, और कंफर्म यहाँ पर लिखना है हमें इसे, डी रजिस्टर मीन्स, यहाँ पर आप देखो तो क्या हो जाएगा, 150 सेकंड्स वेट करेगा और क्या करेगा, डी रजिस्टर करेगा, मीन्स 2.5 मिनट लेगा, उसके बाद में ऑटोमेटिक ये डी रजिस्टर कर देगा। ओके, दो ही दिख रहे सर्वर अभी, करेक्ट, वेब सर्वर 1 एंड वेब सर्वर 2, दिस इज आवर लोड बैलेंसर, एवरीवन अंडरस्टैंड। अभी हमने लोड बैलेंसर क्रिएट किया, अभी हमें क्या करना है, लोड बैलेंसर डिलीट करना है। तो डिलीट करने के टाइम पे क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से ये सर्वर क्या करना है, डी रजिस्टर करना है। ओके, यहाँ से सर्वर क्या करना है, डी रजिस्टर करना है, डी रजिस्टर कर दिए, कंफर्म, डी रजिस्टर,
ओके। आफ्टर दैट डी रजिस्टर होने के बाद इसको वेट करना पड़ेगा 150 सेकंड। जब तक ये डी रजिस्टर नहीं होते तब तक वेट करने के बाद 2.5 मिनट वेट करेंगे। ओके। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्शन में आना है। एक्शन में आने के बाद क्या करना है, डिलीट लोड बैलेंसर। ओके। कंफर्म कर दिया और डिलीट करने के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा सब। ओके। तो इफ यू एनी डाउट प्लीज आस्क मी नाउ। So let's say in the index.html, we have another link like another type about.html. So will it allow to कुछ redirect? भी दे सकते हो। देखो, आपको सिर्फ फाइल नेम, जहां पर भी देखो कौन सा भी फाइल नेम दो आप। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, अगर से आपको फाइल नेम डिफरेंट देना है तो आप दे सकते हो। ओके। सो डिपेंड्स अपॉन यू। बट आपको क्या देना पड़ेगा, ये फाइल नेम, अगर से ये फाइल नेम दिया आपने, जब आप क्रिएट करते हो लोड बैलेंसर, आपने डिफरेंट दे दिया कौन सा भी पाथ, तो आपको ये जो वेब सर्वर है ना, इस वेब सर्वर में भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेम पाथ पर वो फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। ओके। सो कंटेंट कुछ भी रहो, उसमें कंटेंट डिफरेंट रहे तो भी चलेगा, सिर्फ फाइल नेम क्या चाहिए हमें, फाइल नेम क्या चाहिए, सेम चाहिए। फाइल नेम ओनली सेम, कौन सा भी पाथ दो, कौन सी भी फाइल दो, तो दैट इज नॉट इशू। सर अगर ये जो index.html में हम गए और उसके अंदर और एक क्लिक रहेगा लाइक about.html, हाँ, और अगर उसको क्लिक किया हमने, मतलब एक बार फाइल के हम इनसाइड index फाइल डॉट नहीं क्रिएट कर सकते हम, ये ध्यान में रखना कभी। फाइल के इनसाइड फाइल नहीं क्रिएट कर सकते, फोल्डर के इनसाइड फाइल क्रिएट करेंगे। तो लाइक अगर हमारी पूरी वेबसाइट रहेंगी फुल स्केल, तो अगर हमने एक बार एंटर कर दिया index.html पे, और फिर उसके बाद हमें अगर about.html में जाना है और उस लिंक पे क्लिक किया, तो ये कर देगा आगे, मतलब अनदर पेज। देखो, आप किसके बारे में बोल रहे हो, जो कस्टमर की रिक्वेस्ट आ रही है उसके बारे में बोल रहे हो कि हेल्थ चेक के बारे में बोल रहे हो, वो पहले बताओ मुझे। सर वो हियर इज, रिक्वेस्ट के बारे में बोल रहा हूँ, हाँ, रिक्वेस्ट के बारे में बोल रहा हूँ, मतलब अगर एक बार एंटर कर दिया कस्टमर रिक्वेस्ट और पिंग रिक्वेस्ट, दो रिक्वेस्ट है अपने पास। कस्टमर रिक्वेस्ट। कस्टमर रिक्वेस्ट, करेक्ट। कस्टमर रिक्वेस्ट ने, अगर से आपने कस्टमर रिक्वेस्ट एक बना दी, सपोज दिस इज योर कस्टमर, ये आपने वेब पेज बनाया और वेब पेज कहाँ रखा है आपने, index.html पर रखा है, करेक्ट। तो index.html में रखा है और आपने वहां पर एक टैब है आपकी कॉन्टैक्ट यस। अस, ये तो वर्किंग रहेगी वो। ओके। उसके वेब पेज डिफरेंट भी रहे तो भी चलेगा। बट यहाँ पर हमने index.html क्यों लिया है कि हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर index.html नहीं रहेगा, एक्चुअल जो एप्लीकेशन रहेगा रियल टाइम पे, तो रियल टाइम पे इसका नाम डिफरेंट रहेगा, करेक्ट। इसका नाम भी So डिफरेंट रहेगा। landing हम्म, page I have one. यस, बट सेम नाम रहेगा, जितने भी हमारे ओके वेब सर्वर है और लोड बैलेंसर पर नाम सेम रहेगा, नाम कौन सा भी दो आप, डिपेंड्स अपॉन। ओके। ओके ओके। यस। सर लेकिन कोई भी एक वेब पेज की तो एक ही इंडेक्स फाइल होगी ना HTML की। भाई मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, index.html, यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन छोटा है, हमने कुछ भी नहीं डाला है, इसलिए हमने एक फाइल नेम दिया है। ओके। बट रियल टाइम में इसका फाइल नेम डिफरेंट रहेगा और जो तुम्हारा वेब पेज है उसका फाइल नेम डिफरेंट रहेगा। सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम वेब सर्वर क्रिएट करेंगे, सॉरी वेब सर्वर, जब हम लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे तब हमें पाथ देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या बोला, index.html। ओके। तो एक कंसिडर कर लेंगे कि ये कहाँ पर है, सी /var/ww/html। तो हमें क्या देना पड़ेगा, अगर से रूट में आपने फाइल बनाई है कौन सी, सपोज आपने बना दी कि लोड बैलेंसर, एक लोड बैलेंसर के नाम की फाइल बना दी रूट में, तो आपको यहाँ पर पाथ देना पड़ेगा /root/लोड बैलेंसर, /root/लोड बैलेंसर, जो भी फाइल नेम है। ओके। सिर्फ पाथ नेम आपको चेंज करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड।
यस तो ये इसके साथ ये मत करो कि इसमें ये रहेगा। देखो अगर से आप एक फाइल डाल रहे हो कि उसमें कौन से भी कंटेंट है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ फाइल नेम चेक कर रहा है। ओके, तो अगर से आपने पूरी एप्लीकेशन की फाइल ही रख दी तो दैट इज नॉट इशू, कोई इशू नहीं रहेगा। यहाँ पर भी वो सेम फाइल रख दी, यहाँ पर भी वो सेम फाइल रख दी, यहाँ पर भी वो सेम फाइल रख दी, दैट इज नॉट इशू। अब इस फाइल में कितने टैब्स है, तो जो आपने एप्लीकेशंस लिखा है, ओके, जो आपने एप्लीकेशंस लिखा है HTML डॉट, जो भी इसमें देखो, यहाँ पर हमने देखा था कि sorry, यहाँ पर हमने देखा था वो जो एप्लीकेशंस बनाया था। तो अगर से आपको टैब उसमें आप एप्लीकेशन पे वेब पेज में जो भी आपने HTML फाइल में कंटेंट डाले, उस कंटेंट में ये वेब पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पर आपने उसके इनसाइड वो कोडिंग में लिखा है कि एजेंट लॉगिन की फाइल रहेंगी, ट्रेन बुकिंग की फाइल रहेंगी, उसमें बुक टैब, बुक टिकट एक सब टैब रहेगा। उस पर क्लिक करने के बाद बुकिंग की इंफॉर्मेशन आएंगी। वो आपने डिजाइन किया है कोड, ओके, उसमें रहेगा ही। बट उसका और इसका रिलेशन कुछ भी नहीं रहेगा। ये लोड बैलेंसर क्या करता है, इंटरनल पिंग रिक्वेस्ट क्या करती है, जस्ट वो चेक करती है कि इस नाम की फाइल है कि नहीं है प्रेजेंट। ओके, वो ये चेक नहीं करता कि उसके अंदर कंटेंट सेम है कि डिफरेंट है, उसका वो कंसर्न नहीं है। वो क्या चेक चेक कर रहा है, जस्ट चेक कर रहा है कि दैट फाइल नेम इज प्रेजेंट और नॉट, सेम फाइल नेम हियर आल्सो, हियर आल्सो, हियर आल्सो। ओके, सर समझ में आ गया अभी। ओके, एनीवन एनी डाउट? एक्चुअली सर, ये रिस्पॉन्स टाइम हो गया या फिर जो पिंग रिक्वेस्ट है, ये इसका टाइम जो हम बता रहे हैं कि मतलब 2 सेकंड्स में जाएगी या फिर करेक्ट, कितने टाइम पे जाएगा, ये किस पे करेक्ट। डिपेंड करता है कि मतलब अपना वेबसाइट ये पे अपने। नहीं नहीं, ये अपना अपने इस पर डिपेंड है कि तुम कैसा उसको डिजाइन डिजाइन करते हो। ओके, सो अगर से तुमने हेल्दी थ्रेशोल्ड और 3 रख दिया, ये कितने बार चेक करेगा, 3 बार। जब तक उसको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक वो बोलेगा नहीं कि ये सर्वर अप एंड रनिंग है। वो तुम पर डिसाइड रहेगा। ओके, वो तुम्हारे जो भी आर्किटेक्चर रहेगा, इस एप्लीकेशन का जो भी आर्किटेक्चर रहेगा, जो एप्लीकेशन डिजाइन करेगा, उस पर, उस बंदे पर डिपेंड रहेगा। ओके, ओके ओके। अगर सिर्फ उसने आपको बोल दिया 2 रखना है तो आप 2 ही रखोगे, उसने बोल दिया 4 रखना है तो 4 रख दोगे। अनएलडी का भी वैसे ही, टाइम आउट का भी वैसे ही, इंटरवल उसने बोल दिया कि मुझे 10 सेकंड का इंटरवल चाहिए तो 10 सेकंड का इंटरवल। ओके। और सर एक और इशू था, एक सिक्योरिटी ग्रुप हम जब क्रिएट करते हैं तो अब तक हमने सिर्फ IPv4 का ही क्रिएट किया है। IPv4 का ही सिलेक्ट करना है हमें। हाँ, ओके, लेकिन अभी जो न्यू मतलब जियो वगैरह का जो कोई IP एड्रेसेस आते हैं वो IPv6 में भी आते हैं देखो, कोई कोई। करेक्ट करेक्ट, IPv4 क्या होगा, लिमिटेड है कंसेप्ट। ओके, यस। ये टॉपिक हम नेटवर्क में लेंगे, अच्छे से डिटेल में लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, why ओके we ओके। are using IPv4 and why we are not using IPv6 now। IPv6 यूज कर रहे हैं बट ये सर्वर के लिए IPv6 यूज नहीं कर रहे, सर्वर के लिए दूसरा। अभी देखो, जब आप बाहर निकलते हो, घर से बाहर निकलते हो, आप कितने आईपी लेकर निकलते हो? कभी आपने ये किया कि इमेजिन किया है कितने आईपी एड्रेस रहते हैं आपके पास? डिपेंड्स ऑन अपने वाईफाई कनेक्शंस पे, जिस पे कनेक्ट हो गए उसका IP आ जाता है। नहीं, मोबाइल है आपके पास, मोबाइल का एक आईपी एड्रेस। ठीक, अगर से आप 2 सिम यूज करते तो सिम के आईपी एड्रेस के बाद में आप वायरलेस हेडफोन यूज करते हैं उसका एक आईपी एड्रेस, आप स्मार्ट वॉच यूज करते हैं उसका एक आईपी एड्रेस। ओके, अगर से आप स्मार्ट बूट, जो बूट आ रहे हैं अभी, स्टेप्स काउंट करते हैं या फिर उसके लाइट लगते हैं, वो सब, तो उसका एक आईपी एड्रेस। मीन्स अगर से आप हेडफोन यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, या फिर आपका ये यूज कर रहे हो, क्या कर, वॉच यूज कर रहे हो, ओके, स्मार्ट वॉच, तो आप कम से कम 3 से 4 आईपी लेके घूम रहे हो। करेक्ट, सबको एक एक यस। आईपी असाइन रहता है हम्म। और उस आईपी एड्रेस से कम्युनिकेशन होता है, और हमें पता ही नहीं कि हम आईपी एड्रेस लेके घूम रहे हैं घर पे।
वी विल सी नेक्स्ट पार्ट, मंडे से या फिर फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे। ओके, एनीवन हैव एनी डाउट्स, प्लीज आस्क मी नाउ। अभी देखो ये हमारा स्टार्ट का सेशन है, तो